Okay, good morning to all of you. Today we will start about data dictionary. Now, let us understand what is the meaning of a data dictionary first of all. Data dictionary comprises of two words, that is number one, the data, and second is the dictionary. Yes, already we have discussed about the data in the class. That data means simply the information that is being collected through some sources. Means data, what is data? Data is some information that has been collected through some sources. And dictionary means where this information is available. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डिक्शनरी की बात करें, जो आपके पास एक डिक्शनरी होती है, वैसे तो आप लोग खरीदते नहीं हो आजकल, जैसे अपन विकिपीडिया की बात करें, आप लोग कंप्यूटर्स की दुनिया में आए हैं, तो कंप्यूटर्स में विकिपीडिया क्या है? इट्स अगेन अ टाइप ऑफ अ डेटा डिक्शनरी. आप उसमें कुछ भी सर्च करो, वो आपको उसके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में आपको बता देता है. इट्स अ टाइप ऑफ अ डेटा डिक्शनरी ऑल्सो. डेटा डिक्शनरी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डेटा एलिमेंट्स or contents of database such as data types, the text descriptions of the system. Also, it makes easier for user and analyst to use data as well as understand and how common knowledge about inputs, outputs, components of a database and intermediate calculation. अब डेटा डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो एक डेटा से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स द सोर्स, कहां से वो डेटा आ रहा है, ऑल रिलेटेड कंपोनेंट्स और इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, उसमें अगर कुछ कैलकुलेशन हुए हैं उस डेटा को कंपाइल करने में, देन ऑल टाइप ऑफ कलेक्शंस आर एम्बेडेड और कलेक्टेड और इनको इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट कर दिया, एक जगह पर कहीं सेव कर लिया जाता है, देन इट्स बिकम अ डिक्शनरी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द डेटा डिक्शनरी इज इंपॉर्टेंट और essential. There are less information and details provided by data models. So data dictionary is very essential and needed to have proper knowledge and usage of content. जो data models हम डिटेल में पढ़े थे, उन data models में वो information कुछ less होती है. तो data dictionary क्या करती है? It helps us to use or utilize the proper knowledge and the usage of content. Data dictionary also provides information about names that are used in system models. Data dictionary also provides some information about entities, relationships, and attributes that are present in a system model. Also, as a part of a structure analysis and design tool, implementation of data dictionary is done. So अगर हम data dictionary का यूज देखें तो data dictionary क्या है? मुझे हर जगह कहीं ना कहीं यूजफुल है, just to know the entities, just know the ER relationship, entity relationship, know the attributes of the data, know the some structured analysis and design tool, so that implementation can be done easily. So, what does the data dictionary consist of? The data dictionary consists of following information. Number one, name of the table in the database, उन टेबलों के नाम जो डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं. Second, the constants of the table. Constants of the table means key क्या है, relationship क्या है, etc. Columns of the table that are related to each other. कौन कौन से कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं. Owner of the table, उसका ओनर कौन है. और फिर last, accessed and updated information of the object. Let us see the example. You can see the example here. एक हमने स्टूडेंट पर्सनल डिटेल की डेटा डिक्शनरी है, स्टूडेंट्स की डिटेल है, जिसमें स्टूडेंट आईडी होता है, एक टेबल का नाम है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, इसमें 4 कॉलम है, 4 कॉलम में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट सिटी है. तो फिर वो ये बता रहा है कि कौन सा कॉलम या कौन सा डेटा, मतलब पहले सेल में अगर डेटा स्टूडेंट आईडी आ रहा है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसकी फील्ड लेंथ कितनी है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, फॉरेन की है या कुछ नहीं है. डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि वो डिस्क्रिप्ट क्या करेगा या क्या डेटा इकट्ठा कर रहा है. तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट सिटी. अब अपन देखो यहाँ पे लिखा है वेर कार, VARCHAR. अपन ने जैसे C++ में पढ़ा था ना, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ऐसे इन द सेम वे जब डेटा टाइप्स में काम पढ़ोगे तो डेटा टाइप्स में जो डेटा टाइप होते हैं, DBMS में जो डेटा टाइप होते हैं वो वेर कार.
मतलब एक स्ट्रिंग जैसा काम करेगा जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड। तो यहाँ देखो आप 20 कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड, 30 कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड, 20 कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड, और 5 न्यूमेरिक नंबर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्टूडेंट आईडी एंड इट इज ट्रीटेड एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब जैसे अपन सीरियल नंबर डालते हैं ना, तो सीरियल नंबर एक प्राइमरी की बन जाता है, 1 2 3 4। इन द सेम वे जो स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट नंबर है वो एक प्राइमरी की जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो मेन की होती है, उससे आप बच्चों को पहचान पाओगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ student data dictionary. Now there are 2 types of data dictionary. Number 1, active data dictionary, and second is the passive data dictionary. एक्टिव डेटा डिक्शनरी का मतलब होता है कि जो डिक्शनरी या डेटा जो है हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाए। हमें उसको जैसे आप देखते हो मोबाइल में जब आप कोई वर्ड डालते हो तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली आप देखो उसमें ऐड हो जाता है, किसमें, आपके मोबाइल के डेटाबेस में। और वो जैसे ही ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी। मतलब वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अपडेट करता रह रहा है खुद के लिए। सेकंड होती है पैसिव डेटा डिक्शनरी। पैसिव डेटा डिक्शनरी में मतलब जिसमें यूजर से हम कहते हैं कि यू वांट टू ऐड इट। तो आपने देखा होगा कई बार अपन जब वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो वो कोई अपन वर्ड आता है और आप वो सुधारने लगता है, आप उसको मना करते हो, तो वो कहता है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब होता है क्या आप उसको ऐड करना चाह रहे हो हमारी डिक्शनरी में, तो दैट इज नोन एज पैसिव। मतलब व्हेन यूजर मॉडिफाई और ऐड सम डेटा देन वी से पैसिव डेटा डिक्शनरी। और जब मोबाइल में जैसे अपन काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स इंसर्ट हो जाते हैं, सेव होते जाते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिव डेटा डिक्शनरी। सो जो ऑटोमेटिकली अपडेट कर ले then we say it's an active data dictionary. So DBMS software manages the active data dictionary automatically. The modification is an automatic task and most RDBMS has active data dictionary. It is also known as integrated data dictionary. So this is all about data dictionary. Okay, let us start about database administrator. तो बेसिकली अपन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे समझे कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर होता है, जैसे अपने कॉलेज में डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे एक एचओडी बैठा हुआ है और एचओडी डायरेक्टर के बीच में एक डीन बैठा हुआ है। तो होलसेल इंचार्ज कौन है, हमारे डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर चाहे तो सुबह से आके सारे एचओडीज को अपना काम बता देते हैं कि आपको इन्हें ये काम करना है। एचओडीज अपने डिपार्टमेंट में आके अपनी फैकल्टीज को काम बता देते हैं कि आज आपको ये काम करना है। मतलब क्या हुआ, वो सबको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर। इन द सेम वे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है जो डेटाबेस को एडमिन करे या डेटाबेस को मैनेज करे। सो बेसिकली ही इज अ इंडिविजुअल और अ पर्सन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग, मेंटेनेंस, कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। मतलब हर काम, चाहे वो कंट्रोल करना हो डेटा को, चाहे मेंटेन करना हो, चाहे कोऑर्डिनेट करके किसी को इधर उधर ट्रांसफर करना हो, और चाहे उसको कुछ एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, अपडेशन करना हो, ऑल थिंग आर मैनेज बाय डीबीए। डीबीए मींस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हु इज द पर्सन। एक आदमी होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ पर्सन मैंने इसलिए कहा कि जैसे अपने डायरेक्टर के अंदर में 8 एचओडी बैठे हुए, तो ग्रुप ऑफ पर्सन 8 एचओडी 8 डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, उन सबके ऊपर एक डायरेक्टर बैठा हुआ है। सो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल and are in charge of authorizing access to database। मतलब किसको एक्सेस करने की परमिशन देनी है। कोऑर्डिनेट मींस अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट करना। ऐसा कैपेसिटी मतलब उनके पास होलसेल इंचार्ज है, दे आर द बॉस ऑफ द होल डेटाबेस। उसकी प्लानिंग करना कि उस डेटाबेस को कैसे मैनेज कराना है, कौन सी चीज ऐड करना है, कौन सी चीज अपडेट कराना है, उसको कहीं मान लो किसी दूसरी सिस्टम पे इंस्टॉल करना है और उसको मॉनिटर करना है। The uses and for acquiring and gathering software and hardware resources as and when needed। मतलब वही सिस्टम भी देंगे, वही आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे, वही आपको हार्डवेयर भी देंगे, वही उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देंगे, डेटाबेस को इंस्टॉल करके देंगे, और वही उसकी परमिशन देंगे कि तुम कितना उसको एक्सेस कर सकते हो, कहां तक तुम एक्सेस कर सकते हो, उसकी भी एक लिमिट होगी कुछ। So their role is also varies from configuration, the database design, the migration, the security, the troubleshooting, the backup, and the data recovery. Also, it's a major and a key function in any firm and organization that is relying on one or more database. So, अपन ये कह सकते हैं कि he or she is the overall commander of the database system। मतलब डेटाबेस का बॉस यही है,
भली कंपनी का बॉस हो या नहीं हो, लेकिन डेटाबेस का बॉस यही है. विदाउट हिज परमिशन नो डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड और एक्सेस बाय एनी पर्सन. सो अब डेटाबेस हमने अभी कहा एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है. So there are different types of database administrator. What are different types of database? DBA. For example, administrative DBA. Administrative DBA जैसे नाम है, जिसका काम है केवल एडमिनिस्ट्रेशन करना. Means their job is to maintain server and keep it functional. Their concern are with data backups, security, troubleshooting, replication and migration, etc. अब हमने क्या किया, हर आदमी को छोटे-छोटे काम पकड़ा दिए कि तुम उसको कैसे करना है. Second, data warehouse DBA. डेटा वेयर हाउस क्या होता है, जहां अपन वेयर हाउस शब्द सुना होगा तुमने, अपने देखा होता ना, गेहूं के वेयर हाउस होते हैं, खाद के वेयर हाउस होते हैं, सब्जियों के वेयर हाउस होते हैं. वेयर हाउस क्या होता है, जहां पे हम सबको साफ सुथरा करके जगह सेव कर देते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने के लिए. प्याज के वेयर हाउस में प्याज रख दिए अपन ने संभाल के, ताकि 4 महीने बाद 3 महीने बाद अपन इसको बेच सकें. तो वेयर हाउस अलग अलग टाइप के होते हैं. तो इन द सेम वे यहाँ वेयर हाउस का मतलब होता है जहाँ डेटा ही डेटा स्टोर है, डेटा ही डेटा स्टोर है, लेकिन उस डेटा को पहले हम क्लीन कर लेते हैं. रॉ डेटा नहीं होगा, वो सब डेटा साफ सुथरा करके क्लीन करके यहाँ जमा करेंगे. जब अभी आप लोग खैर मैकेनिकल वाले बच्चे हो, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना, तो डेटा क्लीनिंग एक प्रोसेस होती है. तो डेटा को क्लीन करके हम यहाँ वेयर हाउस में मर्ज करेंगे. तो ही असाइंड अर्लियर रोल्स बट हेल्ड अकाउंटेबल ऑफ मर्जिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू द डेटा वेयर हाउस. We also design warehouse with cleaning and scrub data prior to loading. पूरा का पूरा डेटा को साफ सुथरा करके यहाँ रखना, कौन से डेटा को मर्ज करना है, किस डेटा को मर्ज नहीं करना है, किस डेटा को कहाँ स्टोर करना है, दैट इज अ डेटा वेयर हाउस DBA. थर्ड होता है डेवलपमेंट DBA. डेवलपमेंट DBA मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड मतलब यहाँ पे जो क्वेरी से रिलेटेड बात करेगा, जो क्वेरीज को बिल्ड करेगा, क्वेरीज को डेवलप करेगा, और उनकी पूरी प्रोसीजर को कि कैसे वो डेटा स्टोर होगा, कैसे वो डेटा हमारा बाहर जाएगा, कैसे उसकी क्वेरी जनरेट होगी, वो सारा का पूरा मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम ये देखेगा. वो है DBA, डेवलपमेंट DBA. सो दे बिल्ड एंड डेवलप क्वेरीज, स्टोर प्रोसीजर्स एक्सेट्रा दैट मीट्स फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. दे आर पार एट प्रोग्रामर, बेसिकली दे प्रोग्रामर होते हैं. थर्ड नेक्स्ट अगर हम DBA की बात करें, वो होता है एप्लीकेशन DBA. एप्लीकेशन DBA का मतलब क्या होता है, जैसे नाम है ना एप्लीकेशन, तो जैसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे इनके रिक्वायरमेंट को मैनेज करें. मींस दे पर्टिकुलरली मैनेज ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन कंपोनेंट्स. मतलब जिस एप्लीकेशन को कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है उन डेटा को रिलेट करेगा, एप्लीकेशन क्रिएट भी करेगा, एप्लीकेशन को मैनेज करेगा, उनको इंटरलिंक भी करेगा. मींस ये क्या करेगा, components that interact with database and accomplish activities such as application installation, coordinating, application upgrade, database cloning, data load process management, etc. किसको कितना डेटा देना है, किसके डेटा को क्लोन बना के देना है कि वो बैकअप बना रहे, चेंज भी ना कर पाए, वो केवल डेटा को रीड एक्सेस देना है, कि डेटा को रीड एंड राइट एक्सेस देना है, कि डेटा को अपडेट भी करने देना है उसको, वो सारे के सारे राइट्स वो होगा, वो यहाँ से वो उनको मिलेगा. नेक्स्ट इज आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, जो डिजाइन करे. तो जो आर्किटेक्ट कौन होगा, जो डिजाइन करके देगा आपको पूरा का पूरा के डेटाबेस बनेगा कैसे, कौन सी फील्ड कितनी होगी, वेयर कार अपन ने लिया कितने कैरेक्टर को स्टोर करने की परमिशन उसको होगी, नंबर वैल्यू ली तो कितने नंबर्स को स्टोर करेगा. तो वो पूरे का पूरा आर्किटेक्ट का काम होता है उस डेटाबेस को डिजाइन करना. एक होता है OLAP DBA, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. जैसे आपने देखा होगा ना, आप गूगल अमेजोन में कोई चीज सर्च करते हो, आपको फेसबुक पे विज्ञापन मिलने लगता है, आपको गूगल पे विज्ञापन मिलने लगता है, आप जो जितनी भी वेबसाइट खोलोगे उसमें आपको विज्ञापन दिखने लगता है. वो चीज आपने अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में सर्च करी हो, वो कैसे हो गया, OLAP प्रोसेस. ऑनलाइन वो पूरी की पूरी एनालिटिकल प्रोसेसिंग करते रहते हैं. आप क्या सर्च कर रहे हो उसके हिसाब से वो डेटा को इधर से उधर करने लगते हैं मार्केटिंग एजेंसीज. ऐसे इन द सेम वे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है, वो पूरी ऑनलाइन बैठ के डेटा का अपडेशन चलता रहता है, अपडेशन चलता ही रहता है. दैट इज OLAP DBA. अब अगर हम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, हमने अभी आपसे क्या बोला, वो सब कुछ है, बॉस है वो. तो वो हार्डवेयर को डिसाइड करेगा, उसे हार्डवेयर क्या चाहिए, किसको कौन सा देना,
उसकी कॉस्ट क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसे कौन सा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सूट करेगा, वो सब कुछ ही डिसाइड डीबीए। इट ऑल्सो मैनेज डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, वो डेटा की इंटीग्रिटी बना के रखना, सिक्योर बना के रखना इसी का काम है। डेटाबेस डिजाइन का काम भी इसी का ही है, कौन सा डेटाबेस कैसे बनना है, क्या करना है। डेटाबेस को इम्प्लीमेंटेशन का काम भी इन्हीं का है, डीबीए का। क्वेरी प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस, ये भी काम इन्हीं का है। और ट्यूनिंग डेटाबेस मतलब डेटा को अपडेट करते रहना, उसको ट्यून करते रहना, जिससे फालतू चीजों को क्लीन करते रहना, अदर थिंग्स कैन बी मेट। सो एसक्यूएल कमांड्स को यूज करते रहना और अपने डेटा को अपडेट करते रहना। सो डीबीए जो होता है वो डेटाबेस की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।